हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं फिर से कुछ प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन जो पहले भी हम लोग देखे थे। उसी तरह का फिर और कुछ क्वेश्चन लेके हम हाजिर हुए हैं। चलिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवेकन। सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी। If BD is equal to 5 centimeter, AB is equal to 12 centimeter, AD is equal to 8, then the length of CD is। तो चलिए सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल का। मान लीजिए ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी। डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी। इस पॉइंट के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, स्पेसिफाई जस्ट एनी पॉइंट, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, डी इज ए पॉइंट ऑन, दिस इज डी। इफ बी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दिस वन इज 5 सेंटीमीटर। AB is equal to 12 centimeter. This is 12, then this will also be 12. AD is equal to 8 centimeter. This one is 8 centimeter. Then the length of CD. We have to find the length of this one. Now see, one theorem was there that in isosceles triangle में क्या होता था कि अगर कोई भी जो इक्वल साइड है उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है उससे अगर कोई भी परपेंडिकुलर इसमें खींचा जाए तो ये क्या करता है, ये इन दोनों को बाइसेक्ट करता है। मगर इसका मतलब अगर ऐसा मैं एक परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ करूं तो दिस साइड इज इक्वल टू, मान लो ये हम ले लिया E, देन बी ई इज इक्वल टू ई सी। ओके, देन बी ई विल बी इक्वल टू ई सी। ओके, तो BE अगर इक्वल टू EC हो जाता है तो मैं इधर मान लेता हूं इस छोटा का DE को मैं मान लिया K, दिस वन इज K। तो EC विल बी 5 प्लस K, यस और नो? EC विल बी 5 प्लस K। नाउ सी, फ्रॉम हियर दिस इज ऑल्सो ए राइट एंगल ट्राइंगल। This is totally a conceptual problem. Triangle ADE is equal to what? Right angle triangle. So, right angled triangle. Okay, so from there we can write, suppose this is H, as this is height, so we are considering this as H. So, K square plus H square is equal to 64, because this is 8 square, that is 64. K square plus H square is equal to 64 हो गया। ओके, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे इसमें, तो इधर से हम लोग H square is equal to लिख सकते हैं, H square is equal to लिख सकते हैं 64 माइनस K square। वही सेम चीज हम इधर AEC ट्राइंगल में बैठा देंगे जहां पर ये होता है AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AE स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर, EC स्क्वायर मतलब 5 प्लस K उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। यस और नो? ठीक है, इतना तक सही है। चलो, और H स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ 64 माइनस K स्क्वायर लिख सकते हैं, 64 माइनस K स्क्वायर प्लस 25 प्लस K स्क्वायर प्लस 10K इज इक्वल टू 144। यस और नो? तो K स्क्वायर एंड दिस K स्क्वायर विल बी कैंसल आउट। 64 प्लस 25 89, 89 this here minus 89, this cancel, then 10K is equal to 10K is equal to how much? This will be 44 plus 11 55. Then K is equal to what? K will be equal to 5.5. K will be equal to 5.5. Okay, now what is the question? What have been asked for? What is then the length of CD is? CD is here. This is CD.
this to this. Now see, this is 5.5 means 5 plus 5.5 means 10.5, means EC is equal to, let's directly do it. DC is equal to 5 plus K plus K, yes or no? 5 plus K, then 5 plus 5.5 plus 5.5 is equal to 11, then 11 plus 5 is equal to 16 centimeter. Option 1 will be the right answer. Okay, clear? नेक्स्ट चलो ना अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए बी सी एंड डी बी सी आर ऑन द सेम बेस बी सी बट ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ इट. AD and BC intersect each other at O. AO is equal to this, and the area of triangle ABC is equal to x centimeter square. Then what is the area of DBC? See, triangle ABC and DBC, that means here it will be BC will be the common and A and D in the opposite side. So figure will be like this. Figure will be like this. This is there. This is A. This is B. This is C. And here this is D. Clear? So this is there. Now see, but on opposite side of it, AD and BC intersect each other. AD and BC, this is AD and BC intersect each other at O. If AO is equal to A centimeter, this is A centimeter, and DO is equal to B centimeter, and the area of triangle ABC, this much. The area of triangle ABC is equal to given x centimeter square, then what is the area of triangle DBC? Here one thing we have to do is draw perpendicular. See, this line is not sure whether it is perpendicular or not or anything else. We don't know anything. Okay, so let's draw a perpendicular from here to here and from here to here. Okay, this is perpendicular we are drawing. So from here, one thing you just try to understand that this triangle and this triangle, suppose this is D, this is O, this is suppose P, this is Q, then triangle APO similar to, or better say, you can say it, okay, let it be similar to triangle, this is A, this is D, DQO. Yes or no? Yes or no? Then AP by how, means what are the condition of that one? This is perpendicular, this is perpendicular, this and this is vertically opposite angle, so this and this will be automatically equal. So this is similar triangle, it is confirmed. So from there you can write AO by, this is OD is equal to A by B is equal to AP by DQ. This AP and DQ are what? This is the interesting fact. This is suppose H1, this is H2, this one H2. So this is will be H1 by H2. This is what we can write for similarity theorem. Now this is very easy. Triangle half into base, this is BC into H1 is equal to X. This is for what? This is for what? This is for triangle ABC. Okay, now for half into BC into H2 is equal to, we don't know, this is for triangle DBC. Suppose let it be as K. We have to find the value for K. Now divide this and this cancel, this cancel, then H1 by H2 is equal to X by K. H1 by H2 is equal to X by K. H1 by H2 is equal to A by B is equal to X by K. Then K will be equal to Bx by A, and K is, this is the option 3, and K is area of triangle BDC. Yes or no? Clear? So option 3 will be the right answer. Okay.
चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ x प्लस 1/16x इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ दिस वन 16x क्यूब प्लस 1/256x क्यूब दिस एंड दिस। चलो इसको एकदम आसान तरीके से करेंगे, नॉर्मल, ज़्यादा शॉर्टकट वॉर्टकट इसके चक्कर में नहीं जाएंगे, नॉर्मल होता है नॉर्मली कर देंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जा सकता है, किंतु आप लोग जब करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो तो इसमें क्या करेंगे, इसको देखो, एक चीज़ थोड़ा इसमें ख्याल करना है, इसमें एक से इसमें 16x क्यूब है, तो इसको अगर क्यूब करेंगे ये तो नहीं आने वाला, तो इसको कुछ करना पड़ेगा ताकि इस ये वाला आ जाए। चलो देखते इसको, अगर 2 से गुना कर देते तो ये वाला आ जाएगा 2x प्लस 1/8x इज इक्वल टू 6। अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, इसको अगर क्यूब करोगे तो 2x क्यूब आएगा, 2x क्यूब मतलब कितना आएगा 8x क्यूब, तो 8x क्यूब का डबल करोगे तो 16x क्यूब आएगा, ठीक है। और ये आएगा 512x क्यूब, उसको 2 से गुना करोगे, ऊपर 2 होगा तो 2 कैंसिल होकर 256x क्यूब आ जाएगा, तो ये होगा। तो इसको हम अप्रोच कर सकते हैं, तो चलो बोथ साइड क्यूब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8x क्यूब, ये हो जाएगा 1/512x क्यूब प्लस 3 इंटू ये हो गया 2x, ये हो गया 1/8x, ये हो गया 6, दैट इज इक्वल टू 216। ठीक है, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 2। ओके, सो फ्रॉम हियर you can write it like this, 216 minus 9/2, here this is 8x cube plus 1/512x cube। दिस ये सब आप ऑटोमेटिक कैलकुलेशन से ही कर सकते हैं अपने मुंह में, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हर समय पेन चलाना पड़ेगा। देखो दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा, 432 माइनस 9 423/2, this part will be equal to 423/2। now interesting part is that what मैं क्या बोला था, इसको अगर 2 से गुना कर दोगे आफ्टर क्यूबिंग दिस पार्ट को, तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो अभी इसको 2 से गुना करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 16x क्यूब बाई 1/256x क्यूब इज इक्वल टू दिस कैंसिल, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 423 विल बी द आंसर। समझ में आया ना, कुछ नहीं करना है, बस इसको जस्ट देख लेना है, थोड़ा घुमा के दिया, इसको जस्ट देख लेना है एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा पहले 1-2 मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड बस, और लास्ट में 1-2 मल्टीप्लाई करना है, यही बस थोड़ा डिफरेंस था, इसको देख के घबराने का नहीं। ओके, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसमें क्या है, इफ x इज इक्वल टू √5 माइनस √3 बाई √5 प्लस √3 एंड y इज द रेसिप्रोकल ऑफ x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब। पहली बात तो ये देख के पता होना चाहिए दिस इज इक्वल टू x क्यूब बाई प्लस 1/x क्यूब के समान है, क्योंकि y जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ x है, तो दिस विल बी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब के बराबर। ठीक है, तो ये निकाल लेंगे तो ये भी निकल जाएगा। अब देखो, अब बात क्या है, अब x क्या है, x इज इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे √5 माइनस √3/2 एंड दिस इज स्क्वायर। फ्रॉम हियर क्या लिखेंगे, 5 प्लस 3 8, ठीक है, 8 से 2 कैंसिल हो गए, 4 माइनस √15। समझ में आया, x इज इक्वल टू 4 माइनस √15, इतना समझ में आ गया ना। देखो ये 5 था, ये 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 का हाफ 4, और 2√15 होगा, उसका हाफ √15, 2 आउट हो गया। तो x इज इक्वल टू अगर 4 माइनस √15 होगा तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 4 प्लस √15। क्लियर, समझ में आ गया ना, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखो, अब x क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का हम देखेंगे तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब x प्लस वाई कितना है, तो एक्स प्लस वाई इसको कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 8 क्यूब इज इक्वल टू, इसको ऐसे रहने दो, ये 3 इंटू XY 1, और ये हो जाएगा फिर से 8। क्लियर, तो इधर से हो जाएगा 512 माइनस 24 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
तो इससे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 488। सही है या गलत, हाँ या ना? ठीक है ना। अब देखो मैं एक बात इसमें बता देता हूँ, इसमें क्या हुआ देखो, एक्स प्लस वाई, इधर से एक्स प्लस वाई कितना आया था, 8 आया था। इसमें हम एक फॉर्मूला स्टैब्लिश कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई इजिकल टू मान लो के, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या हो जाएगा, के क्यूब माइनस 3 के। देखो के क्यूब 8 का क्यूब माइनस कितना हुआ 3 इंटू के का वैल्यू कितना था 8, 3 इंटू के, तो के क्यूब माइनस 3 के अगर कर देते तब भी ये आंसर आ जाता। ठीक है, तो हमको देखो इसमें क्यूब में क्या एक सुविधा होता है, बहुत डिफरेंस डिफरेंस में नंबर रहता है, क्योंकि देखो इसका पहले वाला नंबर है 7 का क्यूब 343, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, 8 का ही होना था। 8 का अगर ले लिया, 8 का 512 हमको याद है, 512 से 3 8 24, 24 माइनस करके कोई भी अगर ऑप्शन ऑप्शन इसमें होता तो हम बिना किसी कैलकुलेशन बिना किसी मैथ्स करे हम डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते थे, क्योंकि फिर भी मैं दिखा दिया। आप ऐसे हो तो नेक्स्ट टाइम से आप वैसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब देखो ये एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, ये तो हो सकता है बहुत तरीके से, लेकिन हम वैल्यू पुटिंग से करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट इससे tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, इसके साथ तो रिलेशन है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ रिलेशन से आप कॉमन लेके इसको निकाल सकते हैं। तो हम क्या वैल्यू पुट करेंगे ये आपको जानना थोड़ा जरूरी है। देखो जीरो हम पुट नहीं कर सकते, क्यों जीरो नहीं पुट कर सकते, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा विल भी क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक इन सब में जब बैठा हो गए तो इसमें एक टर्म आ जाएगा जो है अनडिफाइंड। तो कभी भी ऐसा कोई वैल्यू हम इक्वेशन में नहीं बैठा सकते जिसमें कि वैल्यू उसका अनडिफाइंड हो जाए। ठीक है, यही एक कंडीशन है बस, और कुछ कंडीशन नहीं है। तो बाकी और क्या रहा, तो सबसे इजी वाला जो है तो हम उसी को बिठाएंगे जिसका वैल्यू हम लोगों को सबको याद रहता है, वो है 45। टेन कॉट रहेगा तो सब 45 के तरह ही भागता है, तो हम भी भागेंगे। इधर tan स्क्वायर थीटा का जगह 45 का वैल्यू बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 1, इसके जगह भी 1। ठीक है, और सेक का 45 का वैल्यू कितना होता है √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, और इधर भी कोसेक्स का भी 45 का वैल्यू कितना है √2 का स्क्वायर कितना है 2। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 - 4 दैट इज इक्वल टू -2 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको भी हम वैल्यू पुटिंग से करेंगे। ऐसे तो दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो सॉल्व करने में भी थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम वैल्यू पुट करेंगे। अब बात है वैल्यू कैसे पुट करेंगे, कौन सा पुट करेंगे वो हम लोग जानेंगे। देखो पहले बात तो ये हो गया साइन थीटा 0 बैठाएंगे, अगर 0 बैठाते तो ये 0 हो जाएगा पूरा, ये 1 हो जाएगा, तो 0 तो हो सकता है। लेकिन देखो टेन थीटा मतलब क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है चलो, लेकिन कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा तो हम 0 नहीं बैठा सकते, क्योंकि कॉस 1/0 विल भी क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है, तो हम 0 बैठा नहीं सकते। ठीक है, तो 0 तो इधर नहीं बैठेगा, तो क्या बैठेगा, तो फिर से वही सबसे इजी वाला जो वैल्यू होता है हर समय वही बैठाएंगे, वो है 45। तो चलो जल्द जल्द बैठा देंगे। 45 होगा तो इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, 1 -√2। ओके, तो इसमें 1/√2 प्लस 1/√2 मैंने 2/√2, तो हो जाएगा सिर्फ √2। सेक थीटा प्लस टेन थीटा मतलब क्या हो जाएगा √2 प्लस 1। इधर 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू 1/√2, तो √2, सॉरी इसमें थोड़ा गलत हो गया, इसमें हो जाएगा √2 - 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू है 1/√2। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका में ऐसे होगा 1/√2 प्लस 1/√2 तो क्या होता है 2/√2 होता है, तो उसके डायरेक्ट में ऐसे चलता है, ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो चलो ये हो गया, डिवाइडेड बाई साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1/√2, इसका हो गया 2, कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1/√2, इसका हो गया 2। ओके, तब देखो इधर से एक ये √2 पड़ा रहा, इधर से एक √2 पड़ा रहा, तो ये डिनोमिनेटर पार्ट में कितना है, डिनोमिनेटर पार्ट में है 2√2। ओके,
तो डेनोमिनेटर पार्ट में 2√2 है, इधर से ये √2 कैंसिल आउट, √2 - 1 √2 + 1, तो कितना हो जाएगा 2 - 1 मतलब 1, और ऊपर एक √2 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 1/2। चलो तो इसको तो कैलकुलेशन करके अल्टीमेटली 1/2 आ गया। अब देखो इसमें कौन सा 1/2 आएगा, 2 × 1/√2, तो इसमें आएगा बस √2, 1/√2 × 1/√2, इसमें कितना आएगा 1/2। चलो अब देखने का जरूरत नहीं, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। सही है। चलो, नहीं तो इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर भी साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा सब मिला के दिया है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए मैं सोचा वैल्यू पुटिंग सबसे इजीएस्ट मेथड है, तो मैं ऐसे करवाया। तो दूसरा कोई मेथड आपके लिए इजी हुआ तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, चलिए चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, HCF ऑफ टू नंबर इज 21 and LCM is 221 times the HCF. If one of the number lies between 200 and 300, then sum of the digits of other number is. चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। पहली बात तो ये है, इसमें थ्योरम ये लगेगा जो हम सभी को पता है, LCM and HCF ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ दोज टू नंबर, वो दो नंबर का मल्टीप्लाई होता है। मतलब वो मान लो x इंटू वाई है, x एक नंबर है, y एक नंबर है, ठीक है। चलो तो HCF क्या बोल दिया है, ये बोल दिया है 21, चलो अच्छा है। LCM क्या है 221 टाइम्स द HCF, तो 221 टाइम्स द मतलब 221 किसका, HCF का। HCF कितना है 21 है, हो गया x इंटू वाई। समझ में आया कैसे लिखे। चलो अब देखो, अब ये 221, अब 21 इंटू 21, 221 क्या होता है मल्टीपल ऑफ 13 इंटू 17, 13 इंटू 17 इजिकल टू x इंटू वाई। अब बोलोगे इसको कैसे पता चला 13 इंटू 17, तो मेरा पहला सब वीडियो देखना पड़ेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। जब ये दो का ऐड करके 10 होता है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 21 एक का बाद का नंबर कितना है, ये 10 डिजिट का बाद का नंबर 2 है, 2 इंटू 1 2, 221, तो ऐसे मल्टीपल हो जाता है। तो ये अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो दिमाग में आ ही जाएगा ये 221 है। अब बोल दिया है HCF है तुम्हारा 21, तो ये एक पेयर बनाओ नंबर का और ये एक पेयर बनाओ नंबर का, तो एक नंबर क्या हो जाएगा 21 इंटू 13, मतलब कितना होता है 273, 21 इंटू 13 होता है 2, तो इसमें कितना हो जाएगा 221, तो ये 221 हो गया। तो ये एक नंबर, ये 21 इंटू 13 273, और दूसरा नंबर होगा 21 इंटू 17, तो ये जो भी होगा होगा, ये हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि मेरा नंबर बोल दिया है 200 और 300 के बीच का जो नंबर है वही हमको लेना है, ठीक है। तो इसका फिर से एक बार देख लेते हैं सही किया या गलत किया। या इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 200 देन द सम ऑफ द जो आधा है वो, अच्छा तो इसको हम नहीं ले सकते, ठीक है। 200 और 300 के बीच का नंबर को हम नहीं ले सकते, दूसरा वाला जो नंबर है तो उसी को लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 210 प्लस 147, तो हो जाएगा 357, ठीक है। 357 अगर होता है तो इसका डिजिट का आयत कितना हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई थोड़ा देख लो, ये थोड़ा इधर उधर सा, 7 इंटू 121 147 होता है, 10 इंटू इतना दिस, हाँ हाँ ठीक है 15, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर, ठीक है। इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसा, देखो इसमें एक तो बात है कि a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो इसके चलते एक ही फॉर्मूला हो सकता है जो है ये वाला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस बी सी माइनस सी ए। ये एक ही फॉर्मूला है, इसका और एक टर्म में और या और एक पैटर्न में हम लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला यही वाला है। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, और ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। अभी देखो दिस प्लस दिस इज दिस, देखो 4 और 1 5, 2 2 4 3, तो इसमें क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू सी, और ये माइनस है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली इधर से लिख सकते हैं
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। हाँ या ना? 3abc लिख सकते हैं ना? अब देखो, अब ट्विस्ट देखो, ये ए क्यूब है, बी क्यूब है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो इसके जगह ये जो लास्ट वाला लाइन है उसके जगह हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, वही देखना है। ऊपर जैसा है वैसा थोड़ा लिख लेते हैं, 545, ओके। उसके बाद 0.081, 0.51, 5.2 डिवाइडेड बाय, कैसे लिखेंगे, -3 इंटू 0.324 इंटू 0.221 इंटू 0.545, ये माइनस पहले इसका बैठा दिया, ठीक है। तो चलो अब दिस कैंसिल आउट हो गया। इसको अगर 4 से गुना करोगे तो ये वाला आएगा, डेसिमल हटा दो, ये हो गया 4, ठीक है। इसको इससे करोगे तो 1.3, ठीक है। अब 1 2 3, 1 2 3 तो सब हटा दो, ये हो गया 17, 17 इंटू 13 अभी सीखा पिछले वाला मैथ्स में 221, तो ये 221 हो गया, और आंसर आ गया -1। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया? तो ऐसा कोई भी क्यूब में रहेगा तो सबसे पहले हम ऐसे सोचेंगे, देखना कि सॉल्यूशन आपके हाथ में है, सॉल्यूशन इजीली आ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा इधर उधर करके देगा, ठीक है, घबराने का नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल। चलो तो साथ साथ फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल, तो एक सर्कल है, ये एक मान लो ये एक सर्कल है, ये इंस्क्राइब्ड है, मतलब ये इसके अंदर है, इंस्क्राइब इन ए क्वाड्रिलेटरल, ये टच किया होगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ABCD, चलो ABCD नाम दे देते हैं, ABCD, टचिंग ABBCCD एट PQRS। चलो P, ये Q, ये R, ये S, ओके। एंड B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। AD दिया हुआ है, AD ये टोटल जितना है ये है 24 दिया है, वेरी गुड। AB ये टोटल है 27, DR इतना दिया हुआ है 6। चलो अब देखो, अब एक थियोरम है, अब थियोरम का बारी है। क्वेश्चन तो मैं ड्रॉ कर लिया, अब थियोरम को बारी है। उसके बाद ओ अच्छा क्या दिया है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल आपको निकालना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, चलो तो हम कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन उसका देख लेंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। देखो ये वाला अगर 6 है तो ये वाला भी 6 होगा, ये वाला ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 18, ये वाला 18 है तो ये वाला 18 हो जाएगा, ये 18 है तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 तो ये भी 9 हो जाएगा। कैसे होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट का जो लेंथ होता है क्या होता है, इक्वल होता है। ये 6 दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये 6 हो जाएगा, DS 6। टोटल लेंथ दिया था 24, तो ये DS 6 हो जाएगा, तो ए से कितना हो जाएगा 18, तो ये वाला 18, इस हिसाब से हम कर देंगे। अब देखो और एक थ्योरी है, सेंटर से टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है उधर 90 डिग्री होता है, ये 90, ये भी 90 और ये वाला भी 90, तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी 90 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, तो ये स्क्वायर होगा तो ये 9, ये 9, तो ये भी 9, ये भी 9, तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर रेडियस 9 सेंटीमीटर हो जाएगा तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला कितना है 2πr, 2 इंटू पाई इंटू 9 इज इक्वल टू 18 पाई सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। देखो इसमें कुछ नहीं है, टोटली कंसेप्ट का है। क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखे इसमें हमने, एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करो, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम एक ही सर्कल के ऊपर, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों का लेंथ कितना होता है सेम होता है, एक थ्योरम हुआ। दूसरा थ्योरम क्या हुआ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है सेंटर से ड्रॉ करने के पर वो क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है। यही दो पे आधार है ये वाला क्वेश्चन, और ये हो गया मेरा आंसर 18 पाई सेंटीमीटर। ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एलॉय ए
contains Cu and Zn मतलब copper and zinc in the ratio of 4:3 and alloy B contain copper and zinc in the ratio of 5:2. तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया Cu कॉपर, ये हो गया जिंक। चलो ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉपर कितना बोला है, A में 4 3, B में 5 2। चलो, A and B are taken in the ratio of 5:6 and melted to form a new one। तो इसका कितना लेगा 5, इसका लेगा कितना 6, बस हो गया। चलो, तो ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 27। अब निकालना है जिंक का परसेंटेज कितना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 77। जिंक कितना है, ये वाला जिंक है, ये वाला कॉपर है। जिंक कितना है 27, तो 27/77 इंटू 100 करने से क्या हो जाएगा, जो भी आंसर होगा वही आंसर होगा। ये ऑलमोस्ट नियर अबाउट 35 के पास पास होगा, तो ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर होगा। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, इस क्वेश्चन में क्या है, टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:4। एक्स वाई ये हो गया एफिशिएंसी दिया हुआ है 5 4, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा 4 5, रेशियो, ये रेशियो हो गया वर्किंग टुगेदर। अब टाइम के साथ ये जैसे कि रेशियो है, तो ये के ऐड कर दिया, ये के ऐड कर दिया। ये के ऐड करने से क्या होगा, हमको ये वैल्यू मिल जाएगा और हम आसानी से कर सकते हैं। अब बोला है वर्किंग टुगेदर सेम वर्क इन 10 days, दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days। तब क्या हो जाएगा, हम ये लिख सकते हैं 1/4k प्लस 1/5k इज इक्वल टू 1/10। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20k, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1/10। 2 कैंसिल, k विल बी इक्वल टू क्या 2/9, है या ना। k का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/9। वाई एलोन स्टार्ट द वन एंड लीव्स आफ्टर 5 days। तो 5 दिन में कितना किया होगा, 5/5 के पार्ट किया होगा काम, है या ना। तो 5/5 इंटू 2 इंटू 9, तो ये हो गया कितना 9/2, ठीक है। चलो, इसमें एक थोड़ा गलत हो गया, इसमें ये तो हम गलत कर दिए। ये k इज इक्वल टू 2/9 हो नहीं होगा, k इज इक्वल टू 9/2 होगा, क्योंकि ये k इधर चला गया, ये तो 9/2 इधर ही रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो 5/5k क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो फिर से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 5/5k का मतलब हो जाएगा 5/5 इंटू 9, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ये कैंसिल हो गया, तो 2/9 पार्ट वो काम करेगा। कौन करेगा 2/9 पार्ट, कौन क्या, वाई क्या। अभी किसको करना है, अभी करना है द रिमेनिंग वर्क डन बाय एक्स एलोन इन। अब एक्स को करना है, एक्स कितना काम करना है 7/9 पार्ट करना है। एक्स कैसे करेगा, एक दिन में वो कितना करता है 1/4k, 1/4k, तो टोटल कितना दिन लग जाएगा। के का वैल्यू हम इधर अब बैठा देंगे 7/9, ठीक है, और इंटू ये 4k किधर चला जाए, ऊपर चला जाएगा, तो 4 इंटू 9/2, ये 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 2 ये 2 हो गया, ये हो गया 14 डेज। सही है या गलत, देखो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 14 डेज। इसमें थोड़ा उल्टा हो गया था, इसलिए थोड़ा ये गलत हो गया था। अभी समझ में आ गया ना, तो हो जाएगा आंसर 14 डेज, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। लेट x be the least number which when divided by this the remainder in each case is 10 and x is a multiple of this, then what is the least number should be added to x to make it a perfect square। ओके, तो पहली बात तो ये है, कुछ ऐसा नंबर हम लोग को निकालना है जिसको डिवाइड करने पर 10 हमेशा रिमाइंडर रहे। चलो, तो उसके पहले सबसे पहले जो करना पड़ता है, ये इन चारों का हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम चलो निकाल लेते हैं। 15 18 20 एंड 27 का एलसीएम कैसे निकालोगे, आप जैसे मन चाहे निकाल सकते हो।
इनका अगर एलसीएम निकालोगे ये तो हो जाएगा 540। अब जैसे मन चाहो निकाल सकते हो, ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकाल देना 540। लेकिन अब देखो इसमें एक कंडीशन, इन ईच केस इज 10, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा इस हिसाब से 550। लेकिन एन एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 31 एंड दिस इज इफ हम लोग अगर इसको एक्स मानते हैं तो ये 31 से डिवाइड नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर नहीं होगा। तो कुछ मल्टीपल ऑफ क्या लेना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ 540 लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको 10 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 10 ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिख लेंगे 540k प्लस 10 बाई 31। क्लियर? तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होगा। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, 1 2 3, 1 से करेंगे तो नहीं होगा, 2 से करेंगे तो ये थोड़ा ट्राई कर लो, ये तो जो आंसर होगा होगा, ये थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। तो 2 से करोगे तो 1090 आएगा, इफ k इज इक्वल टू 2, इफ k इज इक्वल टू 3 देन ये आ जाएगा 1630 टोटल आ जाएगा, ये भी 31 से डिवाइड नहीं जाता है। और अगर 4 करोगे तो ये आ जाएगा 2170 जो 31 से डिवाइड जाता है, 31 से डिवाइड जाता है। अब क्वेश्चन, तो ये हमको मिल गया x। ओके, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू x टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 2170 तो किसी का स्क्वायर नंबर है नहीं, तो स्क्वायर नंबर कैसे निकालेंगे। अभी जिसको 50 तक याद है या मेरा वीडियो देखा है वो सब तो कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर 45 से आप थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। 45 का स्क्वायर है 2025, ठीक है। 46 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 2116, ओके 2116, ये सब हमने सिखाया था। फिर 41 का स्क्वायर हो जाएगा 2209, तो ऐड करना है तो मतलब ये हो जाएगा 2209 मतलब 2170, दैट इज 39, ऑप्शन 3 विल बी द आंसर। तो इसमें हम रूल क्या देखें, रूल कुछ नहीं है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझ लो कि पहली बात तो ऐसा कुछ नंबर अगर निकालना है तो हम लोगों को सबका एलसीएम निकालना है। 15 18 20 27 सबका एलसीएम निकाल लिया, एनसीएम कितना आ गया 540। अब देखा कंडीशन क्या दिया हुआ है, 540 को आपको 31 से डिविजिबल जाना है, तो 31 से तो ये डिविजिबल है नहीं, फिर हमको चेक करना है। तो चेक करते करते हम देखें 2170 इज डिविजिबल बाय 31 से डिविजिबल जाता है, तो उसके बाद उसका नियर बाय स्क्वायर नंबर जो है वो है 47 का स्क्वायर जो है 2209, और इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये और एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा, व्हेन 7 8 9 7 8 1 1 0 8 5 3 6 आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर x, then the remainder in each case is the same, the sum of the digit x is, okay, इस तरीके से एकदम कुछ नहीं करना है। इसका और इसका डिफरेंस कितना है निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 426, और इसका और इसका डिफरेंस कितना है, ये है 426 और ये है 213। तो ऑब्वियसली जो ग्रेटेस्ट नंबर x है वो 213 होगा, क्योंकि 426 अगर होता तो ये नंबर इसमें एचसीएफ नहीं आ पाता, क्योंकि ये डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस है, ये 213 है, ये 426 है, 213 426 से 2 गुना जाता है तो डिविजिबल है। तो वो जो नंबर है एक जो डिजिट है वो हो जाएगा 213, और 213 का डिजिट का सम कितना है 2 + 1 + 3 दैट इज 6। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये फिर और एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाया गया है, ठीक है, सब 18 का क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं, व्हेन 12 16 18 20 and 25 divide the least number x, the remainder in each case is 4 but x is divisible by 7। वही पहले तरह का क्वेश्चन है, एक ही तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। रिमाइंडर बोल दिया है और x जो दिया है वो
जो इसका एलसीएम निकालेंगे वही होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, वो उससे डिविजिबल नहीं भी हो सकता है। तो हमको निकालना है ऐसा नंबर जो उन सब से भी डिविजिबल हो और 4 रिमाइंडर रहे, और इधर भी हम लोगों को ये दूसरा एक नंबर से भी ये डिविजिबल रहे। ओके, डिविजिबल बाय 7। नाउ व्हाट इज द डिजिट एट द 1000 प्लेस इन एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, 12 16 18 20 एंड 25 12 16 18 20 एंड 25, इन सब का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो ये आ जाएगा 3600। ये आप लोग निकाल लेना, ठीक है। एलसीएम निकालोगे तो ये आ जाएगा 3600। अब देखो 3600 तो 7 से डिवाइड होता नहीं है, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं 3600 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना रहता है। रिमाइंडर इसमें देखो, इसका नियर बाई क्या है 3500 पूरा पूरा 7 से जाता है, 100 बच गया, 100 को 7 से डिवाइड करो, 7 इंटू 14 98, तो 2 हो जाएगा, हाँ या ना। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये थोड़ा समझ लो, 3600 में आपका 2 है, क्या 2 है, रिमाइंडर। तो इसी को अगर 2 गुना कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 7200, इसमें रिमाइंडर कितना होगा 4, हाँ या ना। लेकिन आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 7 से डिवाइड करने से 3 रिमाइंडर आए। तो ये 3600 को हम कितना से गुना करेंगे, 3600 इंटू 1.5 दैट इज इक्वल टू 5400। आप बोलोगे 3 क्यों डिवाइड, ऐसा क्यों 3 रिमाइंडर क्यों हम सोच रहे थे, क्योंकि हमको 4 जो ऐड भी करना है, ये वाला नंबर ये 5400 ये तो 12 16 18 20 25 हर किसी से डिवाइड जाता है, लेकिन हमको क्या करना है 4 रिमाइंडर लाना है। इसको अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर ऑलरेडी है, अब 4 ऐड करोगे तो 5404, दिस विल बी द नंबर इन विच, जिसमें क्या होगा, इन सब को डिवाइड करने से 4 रिमाइंडर आएगा एंड डिविजिबल बाय 7 ऑल्सो। समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा लॉजिक था, ये थोड़ा दिमाग में बैठा लो, बहुत ही इजी है। ओके, अब बोला है व्हाट इज द डिजिट एट द 1000 प्लेस इन एक्स। 1000 प्लेस में क्या होगा 5 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये दूसरा एक क्वेश्चन है, ये है आपका टाइम एंड डिस्टेंस का। देखो ए बी स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम एक्स एंड वाई, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज द डिस्टेंस, हियर ए, हियर इट्स बी। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, मान लो ऐसा कुछ जगह है यहां पर इन दोनों ने क्रॉस किया, तो ए इधर जाएगा और बी इधर जाएगा। ओके, ए एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ देयर जर्नी इन, ए कितने में किया दिस आवर, बी कितने के ने किया 8 आवर रेस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ बी इज दिस, देन द स्पीड ऑफ ए इज। यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये टाइम का जो रेशियो है, इसमें हम देखो, इसमें हम इधर लिख देते हैं 8 आवर और इसमें है 49/8, तो इसका रेशियो हो जाएगा 64:49। तो एक कॉन्सेप्ट इसमें है, ये जो टाइम का जो स्क्वायर है, ये जो है, जो टाइम क्रॉस करने के बाद आता है, उसका जो रूट होता है वो उसका स्पीड का रेशियो होता है। ओके, तो मैं क्या बोला, जो इसका जो टाइम के बाद हम लोगों का जो रेशियो आया, उसका जो स्क्वायर रूट, इसका जो स्क्वायर रूट वो क्या होता है, स्पीड का रेशियो होता है। ये किसका है, ये ए का है, ये बी का है। तब ये 7 इजिकल टू कितना दिया हुआ है 28 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो 8 इजिकल टू कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं।
जो क्रॉस करने के बाद ये क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो एक यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझ लो, ये 6 होल एंड 1/8 आवर क्या था, ये जो ऑलरेडी बी क्रॉस करके आ गया है, बी तो ये ऑलरेडी क्रॉस करके आ गया है, तो ये इसलिए हो जाएगा, इसका जो रूट आएगा वो हो जाएगा बी के लिए, और जो ऑलरेडी क्रॉस करके आ गया है ए, उसका जो रूट होगा वो हो जाएगा ए के लिए, और उसका जो रूट 8:7, ठीक है, ये स्पीड का रेशियो, तो स्पीड का ये रेशियो हो गया 7 अगर इजिकल टू 28 मान लेते हैं तो 8 इजिकल टू 32 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया? ओके चलो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ए सम ऑफ 18,000 इज लेंट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ये वार्षिक है, मतलब ईयरली होगा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड एंड फोर्थ ईयर? अब देखो इसमें एक बात है, थर्ड एंड फोर्थ ईयर, इसमें ये नहीं बोला है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। पहली बात देखो यहां पर 0 है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको क्या मानेंगे, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो ये क्या है, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर क्या है, ये है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये हो जाएगा फोर्थ। तो इसमें अगर 0 था तो इसमें क्या है, जो 10% बढ़ेगा, इसमें 10% बढ़ेगा, तो 2 बढ़ने के बाद जो आएगा वो है थर्ड ईयर, 3 बढ़ने के बाद जो आएगा वो होगा फोर्थ ईयर, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर। ये फोर्थ देख के 4 साल का निकालने मत बैठ जाना, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अभी तो हम लोगों को पता है कि क्या नहीं है। देखो ये है 10, ये 11 फर्स्ट ईयर, 10 11 सेकेंड ईयर, 10 11 थर्ड ईयर, ओके। तो अल्टीमेटली तो ये आ जाता है 1331 और ये आ जाता है 1000, और सेकेंड ईयर के बाद निकालोगे तो ये आ जाएगा 121 और ये आ जाएगा 100, ओके। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कुछ ऐसा कि ये वाला जो परसेंटेज होता है ये होता है 12.1 थर्ड ईयर के लिए, और ये फोर्थ ईयर के लिए ये हो जाता है 13.31, ओके। तो ये डिफरेंस कितना हो गया, 13.31 और 12.1, तो ये आ जाएगा 1.21, ओके। अब ये 1.21 किसका है, ये परसेंटेज किसके लिए है, 18,000 के लिए। तो 18,000, तो 18,000 कितना है 100, तो 180 इजिकल टू 1% हो जाएगा, इंटू 1.21 करोगे तो क्या हो जाएगा 180,360,180, दिस इज 0, दिस इज 87, this is 1 2 217.80, this is option number 3 will be the right answer। समझ में आया कि नहीं आया? यही बात कंफ्यूज, बाकी ये सब तो हो ही जाएगा, यही बात कंफ्यूज करना है कि थर्ड ईयर किसको पकड़ने है। थर्ड ईयर 2 टर्म कंप्लीट होने के बाद को थर्ड ईयर, 3 टर्म कंप्लीट होने के बाद को फोर्थ ईयर पकड़ना है, और उन दोनों का जो परसेंटेज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, उन दोनों के बीच का परसेंटेज निकालना है, और इसी को सम से मल्टीप्लाई कर देने से हम लोगों का ये जो डिफरेंस है निकल जाएगा, ओके ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो इसमें एक रेशियो का मैथ्स है, इसमें देखो a प्लस बी इज टू बी प्लस सी ऐसा दिया हुआ है, हमको ये वाला निकालना है 1/a 1/b 1/c। चलो इसमें एक चीज देखो, हम अगर इधर और इधर पूरा ऐड कर देंगे तो क्या होगा, कुछ तो होगा, चलो देखते हैं। 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18, then a plus b plus c is equal to 9k, क्योंकि ये रेशियो है तो कुछ कांस्टेंट टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कुछ गुना होगा, इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9k, और इसमें भी दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 27, तो ये हो गया k क्या हो गया 3, इसमें कोई संदेह नहीं है, पूरा श्योर है k 3 हो गया।
क्योंकि इधर a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 27 दिया है। चलो अब थोड़ा हम दो चीज लिखेंगे, इधर से निकल जाएगा। देखो एडजस्ट करेंगे, a प्लस बी बाई बी प्लस सी इजिकल टू 7/6। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें एक चीज देखो, इसमें हम लिखते हैं और एक ये वाला भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये b प्लस सी बाई सी प्लस ए इज इक्वल टू 6/5। चलो अब ये 3 ये 4 और ये 2 बैठा हुआ कि नहीं हुआ? ये 4 ये 2 ये 3 ये 2 ये 3। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 का मतलब क्या हो गया? ठीक है, अब इसके साथ आप वैसा कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। 1/3 कर दो, के तो ऐसे ही हट जाएगा। 1/4 कर दो, 1/2 कर दो। हाँ या ना? तो 3 4 एंड 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 4, इसको 3, इसको 6। देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। 3 + 4 7, 4 + 2 6, 4 + 2 6, 3 + 2 5। ये एडजस्ट हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से एडजस्ट होगा। और दूसरा कोई भी अब मेथड लेंगे ना, वो थोड़ा लेंदी हो सकता है, इसलिए मैं ऐसा बोला। तो ये अगर पसंद आए तो ऐसा अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फिर से एक टाइम एंड डिस्टेंस का मैथ है। ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ए पर्सन रीचेस हिज डेस्टिनेशन इन ए सर्टेन टाइम। ओके, टाइम दिया नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया है। ही कवर्स 60% ऑफ जर्नी। 60% को हम मान लेते हैं 3/5, तो बाकी कितना है? 2/5 डिस्टेंस। इन 2/5 ऑफ द टाइम, ये हो गया डिस्टेंस। टाइम के लिए हम लोग यूज कर चुके हैं 2/5, बाकी कितना है? 3/5। ये हो गया टाइम। हाँ या ना? एट व्हाट स्पीड शुड ही ट्रैवल टू कवर द रिमेनिंग जर्नी सो दैट ही रीचेज द डेस्टिनेशन ऑन राइट टाइम? अब डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू तो स्पीड होता है, इतना तो हमको पता ही है। ठीक है, डिवाइड कर दो डिस्टेंस बाय टाइम, ये कट जाएगा, तो हो जाएगा क्या? 2/3 ऑफ ओरिजिनल स्पीड। 2/3 ऑफ ओरिजिनल स्पीड मतलब ये क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 20, 40 विल बी द आंसर। समझ में आया कि नहीं है? हम लोग कुछ नहीं किए, बस वो पोर्शन को काम लगाए। हमको 2/5 डिस्टेंस और जाना है, टाइम है 3/5, तो इसका d/t का रेशियो हो जाएगा कितना? d/t का रेशियो ही हो जाएगा स्पीड, तो वो कितना आएगा? 2/3 ऑफ ओरिजिनल स्पीड जो एस था वो 60 था, तो 2/3 ऑफ 60 इज इक्वल टू 40, सो 40 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रेशियो, परसेंटेज, एक्सपेंडिचर, इनकम, ये सब मिला के कुछ एक क्वेश्चन दिया है। चलो देखते हैं इसमें क्या है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, तो पहले लिख लेंगे A/B। क्या दिया है? 5:7। ये है इनकम, आई फॉर इनकम। चलो, ए से 4,000 एंड बी 5,000, तो इसके साथ क्या करेंगे? इनकम के साथ, अच्छा चलो इधर थोड़े ऐसे लिख लेते हैं, जैसे भी हो। इधर 4,000 लिख लेते हैं, इधर 5,000 लिख लेते हैं। ठीक है, चलो। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66 एंड 2/3% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, इसको मतलब 2/3 ऑफ बी, तब A/B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3। ओके, A/B इज इक्वल टू 2/3। देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी, इसको हमको निकालना है। ठीक है, तो चलो कैसे निकालेंगे इसको? देखो, ये आ गया जो ए एंड बी का, ये आ गया एक्सपेंडिचर का 2:3। लेकिन इसके साथ हम लोग का ये इनकम का कुछ रिलेशन में आना है, नहीं तो ये नहीं निकल पाएगा। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, ये 5 के साथ अगर ये 4,000 माइनस कर देंगे, ओके,
तो कितना हो जाएगा, ये मान लो ये के हो गया, ये के हो गया, थोड़ा समझ लो, इसमें समझने से हो जाएगा। 5K माइनस 4,000 ये इनकम है, ये सेविंग्स है, इज इक्वल टू कितना है, एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर ऑफ ए, ये किसका हो गया, एक्सपेंडिचर ऑफ क्या, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3 एक्सपेंडिचर ऑफ क्या है, बी का इनकम माइनस 5,000। ये सुन लो, समझ में आया कि नहीं आया, क्या कैसे लिखे, चलो फिर से बोल देते हैं। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग्स है, तो ये क्या है, ये डिफरेंस एक्सपेंडिचर। ए का एक्सपेंडिचर, ये ए का एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ बी का एक्सपेंडिचर। तो बी का एक्सपेंडिचर क्या है, ये इनकम है 7K, 7K मतलब वो रेशियो का के, नॉट 1000 वाला के, माइनस 5,000। तो इसको सॉल्व करने से के का वैल्यू निकलेगा, के का वैल्यू निकलने से ही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। चलो देखते क्या होगा, ये 15K माइनस 12,000 इज इक्वल टू, ये होगा, हो जाएगा 14K माइनस 15,000। तो ये हो जाएगा, सॉरी 10,000, या 10,000। सो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2,000। के इज इक्वल टू अगर 2,000 हो जाएगा तो इनकम हम लोग को निकालना है, इनकम ऑफ ए एंड बी। इनकम का रेशियो क्या है, 5 और 7, तो 5 + 7 12, तो 12 इंटू 2, सॉरी, तो 12 इंटू 2 हो जाएगा 24,000। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आज थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, इसलिए अगर थोड़ा किसी को कोई समझ में दिक्कत है तो ज़रूर बोले कमेंट में, लेकिन करना ऐसे ही है। कभी कभी लगता है कि जब हम जो वीडियो देखते इतना लंबा टाइम लग गया, एक क्वेश्चन करने में 10 मिनट लग गया, तो हम लोग को लगता है कहीं हम लोग को भी इतना टाइम ना लग जाए। तो इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा जल्दी जल्दी करूँ, आप लोग बहुत माइन्यूटली इसको सुने, आपको समझ में आएगा, इतना तो हम श्योर है। ठीक है, ये वाला इसका कुछ फॉर्मूला है कि नहीं है हमें पता नहीं, हम कॉन्सेप्ट से करेंगे। मान लो एग्जाम में हमें फॉर्मूला याद नहीं आया, ठीक है, या याद ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो भी हम थोड़ा कैसे करेंगे देखेंगे। चलो, पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है जो साइकिल के सर्कल के अंदर रहता है और ये तीनों जो पॉइंट है ये टच किया हो रहता है सर्कल से, सर्कल के सरकमफरेंस से। ठीक है, ये हो गया मान लो पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एंड एस। पी क्यू दिया है 44.4, क्यू आर दिया है 12.8, एस आर दिया है 9.6। अब बोला है इफ पी आर बाइसेक्ट क्यू एस, पी आर दिस इज द लाइन, ये बाइसेक्ट किया है क्यू एस को, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, बाइसेक्ट किया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी एस, हमको ये वाला निकालना है। अब देखो, पहली बात तो ये है, तो दिस एंड दिस अगर इक्वल है तो ये क्या है, ये मीडियन है, हाँ या ना। मीडियन हमेशा क्या करता है, ट्राइंगल का एरिया को दोनों में बढ़ देता है, तो इसका एरिया इजिकल टू इसका एरिया, हाँ या ना, और इसका एरिया इजिकल टू इसका एरिया, हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं आया। देखो, ये ट्रायंगल अगर मान लो इसका ये मिडिल पॉइंट है, ये मीडियन, ये मीडियन क्या है, बाइसेक्ट क्या है, मतलब उसको मीडियन मान सकते हैं। तो ये एरिया इक्वल, ये एरिया इक्वल, अगर ये दो एरिया को हम ऐड करेंगे और ये दो एरिया को ऐड करेंगे फिर भी इक्वल होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। ये इक्वल है, इसका एक ले लिया, इसका एक ले लिया, तो हम बोल सकते हैं कि अगर बाइसेक्ट करेगा तो ट्रायंगल का एरिया पी आर एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एंड आर, हाँ या ना। ठीक है, बोल सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल का एरिया और ये वाला ट्रायंगल का एरिया हमको क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है,
अब ये वाला ट्राइंगल का एरिया क्या है, ये PRS, एक फॉर्मूला है, मान लो ये वाला थीटा है, तो ये वाला क्या होगा 180 माइनस थीटा, हाई या ना, 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 होता है, तो एक अगर थीटा हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब एक फॉर्मूला है हाफ इनटू कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मल्टीप्लीकेशन, मतलब PS इंटू SR साइन थीटा इजिकल टू हाफ इंटू PQ इंटू QR एंड साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होता है उनका मल्टीप्लीकेशन एंड इंक्लूडेड एंगल जो होता है वो एंड हाफ ऑफ दिस, तो ये हाफ हाफ कट जाएगा। ठीक है, और ये साइन तो इसमें हम इधर करेंगे, देखो PS में फिर से बोल देता हूं, PS इंटू SR इंटू साइन थीटा, और इसमें क्या होगा PQ इंटू QR इंटू साइन 180 माइनस थीटा, हाई या ना। अब ये साइन थीटा एंड 180 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, क्योंकि 180 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो साइन थीटा, हाई या ना, साइन थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो वो साइन वाइन कुछ चेंज नहीं होएगा, डायरेक्ट साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, तो अभी मैं ये डेरिवेशन आपको दिखा दिया, तो ये जब भी बाइसेक्ट करता है तो ये देख लेना है कौन सा साइड बाइसेक्ट करता है, उस हिसाब से आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मल्टीप्लीकेशन आप इक्वलाइज कर सकते हैं। अब देखो PS इंटू एस आर, तो PS आपको निकालना है, SR दिया हुआ है 9.6, PQ दिया हुआ है 14.4 एंड दिस इज 12.8, तो PS इज इक्वल टू, PS हम कैसे निकालेंगे 14.4 इंटू 12.8 डिवाइडेड बाई 9.6। अब इसको तो 24 से करोगे, ये पॉइंट उठा दो, ये पॉइंट हटा दो, तो ये होता है 6, ये होता है 4 एंड दिस इज 3.2, तो हो जाएगा 19.2, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है 19.2। ओके ओके, समझ में आया। अब देखो एक एक चीज, ये जो चीज है, अब अगर किसी कुछ भी पता नहीं है, तुक्का मारना है, तो कैसे मारोगे, तुक्का भी कैसे मारोगे उसका भी तरीका होता है, तुक्का भी ऐसे तैसे मारने से सही नहीं होता है। तुक्का कैसे मारोगे, देखो 12.8, ठीक है, यहाँ पर जितना भी नंबर है सब 16 से डिविजिबल है, 1.96, 128, 44, यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है 192 को छोड़ के जो 16 से डिविजिबल है, 16 इंटू 12 या 192, सो आप इसको डायरेक्टली मार सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि नंबर का खेला है, मैथ्स मैंने पहले ही बोला था नंबर का खेला है, नंबर का खेल खेलोगे। अब नंबर यही 3 दिया हुआ है जिसमें कॉमन है 16, तो नंबर जो आना है उसमें 16 का डिविजिबल का कुछ ना कुछ तो आना ही है। अब ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है कि कोई भी दूसरा नंबर 16 से डिविजिबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली 19.2 मार्क कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रापेजियम का, बहुत ही इजी एक क्वेश्चन है, इन्हें ट्रापेजियम ABCD, चलो पहले ही हम ड्रॉ कर लेंगे जब भी, क्योंकि टाइम नहीं मिलता हम लोग के एग्जाम के समय। हाँ, ABCD, इन्हें ट्रापेजियम ABCD, AB इज इक्वल टू 12, अच्छा थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है चलो इसको कैंसिल कर देते हैं, ये बड़ा हो जाएगा, ये ABCD। एग्जाम में ऐसे गलती मत करना, ये हम लोग समझने के लिए फिर से ड्राइंग किया हो, जैसे भी होगा कर देना। ठीक है, 12, ये है 7.2। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल, ये डायगोनल हो गया, डायगोनल का कुछ भी मान लो, ये मिड पॉइंट है, ये लेंथ आपको निकालना है। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, आप याद कर सकते हो, ये जो लॉन्गर साइड है, पैरेलल जो दो साइड है, ठीक है, इसमें लिख लो ये मॉड है, मॉड मतलब जो भी पॉजिटिव वैल्यू आपका निकालना है, क्योंकि वो लेंथ तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय
2। क्या लिखा, मैं सेंटेंस करके लिख देता हूं, डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये दो पैरेलल साइड्स का जो डिफरेंस है उसका जो लेंथ, उसका मॉड लगा दो, क्योंकि ये पॉजिटिव लेना है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आ जाएगा आंसर। तो इसमें क्या आंसर आएगा, 12 माइनस 7.2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 2.4। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रेशियो का मैथ्स है, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एलॉय ए एंड बी आर। तो ये कॉपर लिख लो, ये जिंक लिख लो, ये ए लिख लो, ये बी लिख लो। ओके, तो पहले वाला है 3:4, ये वाला है 5:9। एक नया कंपाउंड बनाना है सी, ठीक है, इसमें कॉपर एंड जिंक, ये सी का है मान लो, उसमें लेना है, इससे लेना है 2, इससे लेना है 3, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज समझ लो, 9 + 5 गुना करने से कितना होता है, सॉरी ऐड करने से कितना होता है, 14 होता है। तो हम लोग ये कंपैरिजन जो कर रहे हैं ना, बेस 14 से ले रहे हैं, तो इसको क्यों ना हम कर दे, इसको कर दे 6, इसको कर दे 8, कर सकते कि नहीं कर सकते। तब क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो सम है वो हम लोगों का सेम हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 6 × 2 12, 8 × 2 16, 3 × 5 15, 3 × 9 27। तो ये क्या हो जाएगा, 27:43। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। हाँ या ना, समझ में आया। क्या करना है, अगर सेम नहीं रहा तो नहीं होगा, इसको सेम कर लेना है। ऐड करके 14, ये ऐड करके 7 आ रहा है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो तो सेम ही रहा ना, 6:8 3:4 तो सेम ही होता है, तो 6:8 कर दिया। तो डायरेक्ट इससे 2 भाग लेना है, इससे 3 भाग लेना है, मतलब इसको 2 कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, ये 12 16 हो गया, ये ऐसा हो गया, तो 27:43 आंसर हो गया। ओके, तो इसी के चलते आज का ये वीडियो इतना तक है। मैं ये वाला वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया, अभी थोड़ा इधर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, जो भी हो वो एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए। फिर भी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और मैं बोलूँगा ये अच्छा लगने से भी अगर आप दूसरा कोई तरीका कर सकते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये सब क्वेश्चन आप ज़रूर देख के जाए CGL टायर 2 से पहले, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब आता है, अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स अचानक से पहचानना, ये सब अगर नहीं आता है तो अचानक से एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, 18 में ऐसा ही हुआ था, एरिथमेटिक का क्वेश्चन इतना लेंदी लगा सबको कि एग्जाम बहुत लोगों का खराब हो गया था। तो उसी के चलते ये थोड़ा बार बार करके देख के जाओ। मैं 18 का पहले भी 2 वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें 18 का क्वेश्चन है, और इसमें भी लगभग 20-25 क्वेश्चन में डाला हूँ, तो ये देख लोगे तो में इजी वाला डेटा इंटरप्रिटेशन का कुछ था, और जो भी था मैं इजी वाला छोड़ दिया हूँ। जो एकदम नया है, थोड़ा टाइप अलग है, जिसमें टाइम कंज्यूम कर रहा है एग्जाम के लिए या कर सकता है, उन सब क्वेश्चन के एक जगह में किया हूँ। और तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना है, टोटल 50-60 क्वेश्चन बना है 300 में से, 3 सेट का 300 में से 50-60 क्वेश्चन टोटली सिलेक्ट करके उनमें से दिया हूँ। हर क्वेश्चन नहीं किया होगा, आपका टाइम बच जाएगा। तो जैसे भी हो, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा नया चैनल है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।